So, children, one more thing I want to tell you over here is, in this setup, when we are having the concentration of both the solution in anodic and cathodic half cells, 1 m 1 m each, then the voltmeter shows an ideal reading of 1.1 volt. ठीक है, मतलब इस सेटअप पे अगर हम रखते हैं और कंसनट्रेशंस को 1 m पे मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, तो हमारा जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करता है वो 1.1 वोल्ट की करता है. नाउ वी हैव टू सी नाउ रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल क्या होता है. व्हाट इज़ रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल? सो केयरफुली ऑब्जर्व दिस डायग्राम. ये तीनों डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखोगे. ये हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये आप देखें, दिस इज़ द, इफ़ यू विल सी दिस मच, then you will find that this is the same circuit that we have discussed in the last video. and अब ये देखोगे तो ये जो बाहर आपका रियोस्टैट लगा है, अभी आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, रियोस्टैट इज़ एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस. यहाँ से कनेक्ट करके हम एक्सटर्नल करंट इस पे डालते हैं. अब एक्सटर्नल करंट मतलब इस सर्किट को हमने एक एक्सटर्नल करंट से कनेक्ट किया है, जो कि इसके ऑपोजिट वे में, मतलब इसको कैसे इफ़ेक्ट करेगा, विल सी दैट. लाइक इफ़ द एक्सटर्नल करंट इज़ लेस देन 1.1 वोल्ट, लेस देन मतलब जो इसका ओरिजिनल प्रोडक्शन था, इस सर्किट का प्रोडक्शन 1.1 वोल्ट का था, अगर हम एक्सटर्नल करंट लगाते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू लेस देन 1.1 वोल्ट, देन इट विल रिमेन एज इट इज़. जैसा ये करंट एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और करंट आपका जो आप, एज यू मस्ट नो that the electron travels from anode to cathode and the current flows from, current is just opposite to the direction of the electron. If the electrons are moving from anode to cathode, the current will flow from cathode to anode, right? So if we are having the external voltage less than 1.1 volt, whatever was happening earlier, that will remain same, it will remain as it is, right? It is not going to affect the flow of the current in the circuit. But in this case, here we are applying the external volt equal to 1.1. when we are having exactly equal to the internal voltage, हम उतना ही बाहर भी वोल्टेज लगा रहे हैं. अगर हम इक्वल करंट लगा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम करंट लगाएंगे तो हम देखेंगे the reading in the voltmeter is equal to 0, means that I is 0. I means current is 0. There is no current in the circuit. When we are, third condition, when we are increasing the external voltage by 1.1 volt, if we'll increase by this value, we'll find now the electrons are traveling in opposite direction. You can see it is traveling in opposite direction, okay, and the current is flowing from, now the electrons are moving from copper rod to zinc rod, and the current is flowing from zinc rod to copper rod. आप ये भी देखो, बहुत ध्यान से देखो, cathode is, now this rod is cathode. Earlier copper rod was cathode and now copper rod is anode. The copper rod is getting a negative charge, whereas earlier zinc was having negative charge and the copper was having positive charge. Here the copper is having negative and zinc is having positive. तो ये आप देखो पोटेंशियल ऑपोजिट हो जाते हैं जब हम एक्सटर्नल करंट को एक्सीड कर देते हैं सर्किट के करंट से. सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सेल. नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, और यू कैन से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है the force with which the electrons are showing the motion, and this depends on the difference between the electrode potentials of the two half cell is called cell potential. It is also called electromotive force, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाला फोर्स. और ये किस पे डिपेंड करता है? जो हमने दो हाफ सेल्स लेते हैं हम इन दिस फिगर, एज वी आर हैविंग टू हाफ सेल्स, वन दिस एंड वन दिस, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है. Now this is represented as E cell. E cell is equal to E, शॉर्टकट में लिखते हैं ER minus EL, where R stands for reduction, L stands for oxidation, or you can say R stands for right, L stands for left. अब जैसे हमने ये सेल देखा था, we have seen the arrangement of, or you can say the representation of the cell. अभी right left से मतलब क्या है?
इस रिप्रेजेंटेशन में जो राइट साइड में लिखा है दिस इज़ योर राइट साइड, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिडक्शन, एंड दिस इज़ योर लेफ्ट साइड, दिस रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन। किसी भी सेल के लिए आप लिखेंगे राइट साइड पे रिडक्शन लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन लिखेंगे, तो ई सेल निकालने का मतलब है विल बी माइनसिंग द वैल्यू ऑफ रिडक्शन साइड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन साइड माइनस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द oxidation side. So that is L. L is oxidation, R is right or you can say reduction. ओके अब बात आएगी कि आपको ये वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, तो ये आपको इस तरह का टेबल है आपकी टेक्स्ट बुक में। आई विल शो यू दिस टेबल, दिस वाज देयर इन क्लास 11th ऑल्सो, क्लास 11th की NCERT में भी था, क्लास 12th में भी है, तो ये आप यहाँ से आप E0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी आपने कॉपर जिंक का सेल पढ़ा है, तो ये देखो जिंक की वैल्यू है जिंक वैल्यू इज़ -0.76 वोल्ट, एंड सिमिलरली फॉर कॉपर it's here, this one is copper and copper value is positive 0.34, copper is 0.34 वोल्ट। अब अगर हम ई सेल निकालेंगे इसका, तो ई सेल ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू, दिस इज रिडक्शन इज 0.34 माइनस -0.76, सो दिस विल कम 1.1 वोल्ट। और बेटा अगर ये रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव में आता है, तो इसका मतलब है अगर आपकी पॉजिटिव ई सेल की वैल्यू आती है तो मतलब सेल जो है आपका स्पॉन्टेनियस है, और अगर आपको कभी नेगेटिव मिलती है तो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये सेल नहीं बन सकता है अनटिल एंड अनलेस आप एक्सटर्नल करंट को नहीं जॉइन करते हैं। जैसे अगर मान लो हम इस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन जो मैं आपको बता रही थी, जब मैंने एक्सटर्नल वोल्ट को 1.1 से ज़्यादा रखा है, तो अब हमारा ये कॉपर बन गया और ये जिंक बन गया। ये पॉसिबिलिटी तभी है जब मैंने एक्सटर्नल करंट को ज़्यादा रखा, अदरवाइज़ ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर मैं ऐसे ही मान के चलूँ कि ये मेरा रिडक्शन हो रहा, यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे मेरा रिडक्शन हो रहा है, तो मेरी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसका एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के इस प्रोसेस को पॉसिबल किया है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप किसी भी अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, मतलब मैं अगर रिडक्शन पे कॉपर को रख देती हूँ, यहाँ सॉरी रिडक्शन पे जिंक को रख देती हूँ, ऑक्सीडेशन पे कॉपर को रख देती हूँ, मतलब उल्टा कर देती हूँ, तो मेरी ये जो वैल्यू आएगी ये भी उल्टी हो जाएगी, है ना। 0.76 आगे आ जाएगा माइनस में और ये पीछे चला जाएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आने का मतलब है कि ये सेल जो है आपका स्पॉन्टेनियस नहीं है, यू हैव टू मेक इट स्पॉन्टेनियस, देन यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल वोल्टेज to have this reaction. Okay, so this way you can calculate the E cell. अब there is another one also called E naught, यहाँ पे देखोगे आप E naught लगा हुआ है, तो E naught हम कब लेते हैं, E cell और E naught में सिर्फ ये डिफरेंस है, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस इज नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप तब लेते हैं व्हेन यू आर टेकिंग द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इन द स्टैंडर्ड कंडीशन, मीन्स यू आर एट STP व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एट STP। और ये जो होता है ये आप किसी भी दूसरे टेम्परेचर और प्रेशर पे ले सकते हैं। तो ये जो पूरे टेबल में आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, दिस वैल्यू इज़ E naught, दिस E naught is standard electrode potential. So later on we'll be doing the numericals where we'll find that how to find out the E naught and E cell. E cell और E naught में क्या डिफरेंस है वो हम आगे के numericals में करेंगे। थैंक यू।